السلام علیکم۔ روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ ایک دن ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانو اس کو بھی اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی، الغرض سب کو سلام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہ ہوگا جب تک میں اس کے والد اور اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ عازمین حج کی خدمات و سہولیات کے لیے حج سوسائٹی نظام آباد کی جانب سے شہر کے مختلف مقامات پر رہنمائی مراکز کا قیام، عوام سے استفادے کی اپیل۔ صدر حج سوسائٹی مولانا اسماعیل عارفی۔ دیپاولی تہوار کے موقع پر ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی و پی یو سی کمیٹی چیئرمین ایم ایل اے جیون ریڈی نے اپنے اپنے گھروں پر افراد خاندان کے ہمراہ منایا تہوار۔ کئی سالوں سے تنازع کا شکار قبائلی اراضیات کے مسائل کو حل کرنا ہی ریاستی وزیر اعلیٰ کے سیاق کا مقصد۔ ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچرام سرینواس ریڈی کا ریونیو عہدیداروں کے ساتھ منعقدہ اجلاس سے خطاب۔ سی پی کارتکیہ کے احکامات پر محکمہ پولیس کی جانب سے جوئے کے مراکز پر دھاوا و 705 افراد پر مقدمہ درج و تقریباً 11 لاکھ روپے رقم کی گئی ضبط۔ ایم ایس او کی بیلوس کارکردگی سے متاثر ہو کر مولانا کریم الدین کمال کی جانب سے ایم ایس او ایکٹیویٹی سینٹر کے قیام کے لیے دیا اراضی کا عطیہ۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ایم ایس او کی کارکردگی سے متاثر ہو کر ایم ایس او ایکٹیویٹی سینٹر کے لیے صدر عیدگاہ مدینہ و ٹیارس قائد مولانا کریم الدین کمال کی جانب سے اراضی کا عطیہ ایم ایس او صدر و اراکین کی جانب سے کیا گیا اظہار تشکر۔ مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آف انڈیا شاخ نظام آباد گزشتہ 11 سالوں سے شہر میں بیلوس و بے باک خدمات انجام دے رہی ہیں۔ اس تنظیم کی جانب سے طلباء کی رہنمائی، بر وقت مریضوں کے لیے خون کی فراہمی، خون کے عطیہ کیمپ کا انعقاد، ہنگامی حالات میں راحت کے کام و غذائی اشیاء کی تقسیم، طبی امداد و قانونی امداد و دینی خدمات بلا لحاظ مذہب و ملت کی جا رہی ہیں، اور جس کو مد نظر رکھتے ہوئے مولانا کریم الدین کمال صاحب کی جانب سے ایم ایس او کمیٹی سینٹر و ایم ایس او ایکٹیویٹی سینٹر کے لیے اراضی کا عطیہ کیا گیا، جو ڈرائیور کالونی نزد کے گارڈن موجود ہے، جس کی تعمیر کاموں کا آج انہی کے ہاتھوں عمل میں لایا گیا۔ واضح ہے کہ مولانا کریم الدین کمال شہر نظام آباد میں ایم ایس او کے قیام سے ہی اس تنظیم کی بیلوس انداز میں سرپرستی کرتے ہوئے آ رہے۔ اس موقع پر ایم ایس او قائدین نے اپنے اظہار خیال میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا اور اس مقام پر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف اقسام کے فلاحی کام انجام دیے جانے کا انہوں نے اعلان کیا، اور ایم ایس او سے جڑتے ہوئے ان تمام کاموں کو اور بھی آگے لے جانے کے لیے انہوں نے اپیل کی۔ اس موقع پر ایم ایس او نائب صدر مجلس کارپوریٹر محمد علی باغبان، محمد ارشد مجیب، نواز رضا، محمد عارف، محمد غفار، عظیم رضا، سید عمران، ڈاکٹر عرفان، محمد رحیم، ایڈوکیٹ ذیشان رضوی و دیگر موجود تھے۔ آج مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آف انڈیا کے نظام آباد کے آفس کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، جس کے تعلق سے میں فخریہ انداز میں کہوں گا کہ اس کی زمین عالی جناب مولانا محترم کریم الدین کمال صاحب نے ایم ایس او کو ڈونیٹ کی ہیں، اور انہوں نے یقیناً ایک عالم دین ہوتے ہوئے اسلاف کی یادگار تازہ کر دی کہ علماء اور ائمہ جو تھے وہ قوم کا سرمایہ تھے، اور اپنا سرمایہ بلا کسی لحاظ کے قوم کے جو نوجوان ہیں اور اصلاحی تحریکیں ہیں ان کے لیے انہوں نے اپنے دل سے یہ نذرانہ پیش کیا ہے، اور ہم بھی تہ دل سے مولانا کے شکر گزار ہیں کہ آپ ایم ایس او کے نظام آباد یونٹ کے قیام سے آپ سرپرست رہیں اور ہماری سرپرستی فرمائی، اور بہترین انداز میں سرپرستی فرمائی۔ ہمارے ایک عزیزم ساتھی نے بڑا ہی بہترین انداز میں مولانا کے تعلق سے یہ قول کہا تھا کہ مولانا کا دل
कमाल का है। तो यकीनन आज ये बात हम बड़ी खुशी और मसरत के साथ कहते हैं कि आपने अपने उलमा और असलाफ की यादगार ताज़ा करते हुए अपने कौम के नौजवानों की हिम्मत अफजाई की और MSO ऑफ इंडिया के लिए एक बेहतरीन जगह इनायत फरमाई। और साथ ही साथ मैं इस मौके पर अली भाई और कारपोरेटर और दीगर अहबाब का भी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने यहाँ पर शिरकत की और इस मुबारक व मसूद मौके पर MSO का साथ दिया। गुज़िश्ता कई सालों से हल न होने वाले क़बायली ज़मीनात से मुताल्लिक़ मसाइल को रियासती हुकूमत की जानिब से हल करने का फैसला लेने का रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इजहार। रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा शहर में क़बायली ज़मीनात के मसले से मुताल्लिक़ रेवेन्यू अहदेदारों के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि गुज़िश्ता कई सालों से फॉरेस्ट रेवेन्यू एरिया पर गैर कानूनी तौर पर काबिज होकर रियासती सतह पर कई गिरजन अफराद काश्त करने का इजहार करते हुए कहा कि रेवेन्यू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मुताल्लिक़ा ज़मीनात होने के अलावा कुछ वक्त होने की वजह से पट्टाजात ना देने का इजहार किया, लेकिन CM KCR की जानिब से क़बायली ज़मीनात से मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने का फैसला लेने का इंकशाफ किया। గిరిజనులు నివసిస్తున్నారు, గోండ్లు మిగతా గిరిజన జాతికి చెందినటువంటి వ్యక్తులు చాలా గ్రామాలలో చాలా నియోజకవర్గాల్లో నివసిస్తున్నారు. వారు జీవనోపాధి కింద అనేక సంవత్సరాలుగా అటవీ భూమిలో డెవలప్ చేసుకొని పంట పండిస్తున్నారు. ఆ పంట పండించేటువంటి వ్యక్తులలో ఇందులో రెండు రకాలు ఉన్నాయి. అటవీ ప్రాంతం కొంత ఉంది, అటవీ ప్రాంతం కానటువంటి రెవెన్యూ భూమి కొంత ఉంది. రెవెన్యూ భూమి అని తేలిన తర్వాత అది సమస్య లేదు. ఆ భూములలో ఇదివరకు కొన్ని పట్టాలు ఇచ్చారు, మళ్ళీ ఇప్పుడు పట్టాలు ఇవ్వడానికి కోసం కూడా గవర్నమెంట్కి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు। आर्मर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने हैदराबाद में वाक़ रिहाइश गाह में अपने अफराद खानदान के हमरा रोशनी का त्यौहार दीपावली को शानदार पैमाने पर मुनक़िद किया। आर्मर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने हैदराबाद में वाक़ रिहाइशगाह में अपने अफराद खानदान के हमरा रोशनी का त्यौहार दीपावली तक़रीब को शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाते हुए पटाखा जात नजर आतिश करके दीपावली त्यौहार को एहतियात और जोश खरोश के साथ कोविड प्रोटोकॉल की पैरवी करते हुए महफूज तरीके से मनाया। रियासती वज़ीर इमारत और शोरा विमला प्रशांत रेड्डी ने हैदराबाद में वाक़ रिहाइशगाह में अपने अफराद खानदान के हमरा रोशनी का त्यौहार दीपावली तक़रीब को शानदार पैमाने पर मनाया। रियासती वज़ीर इमारत और शोरा विमला प्रशांत रेड्डी ने रोशनी का त्यौहार दीपावली के मौके पर वेलपुर में वाक़ रिहाइशगाह को फूलों के जरिए खूबसूरती के साथ सजाकर मकान में लक्ष्मी पूजा अंजाम दी गई और अपने तमाम अफराद खानदान के हमरा पटाखा जात नजर आतिश करके दीपावली त्यौहार को खुशी के साथ मनाया गया। और इसी तरह से रियासती वज़ीर ने दीपावली त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए कहा कि तमाम अफराद पटाखा जात नजर आतिश करते वक्त एहतियाती इक़दामात को रुबे अमल में लाए और खासकर छोटे बच्चे पटाखा जात नजर आतिश करते वक्त वालिदैन के साथ रहने का इजहार किया। आज़मीन हज 2022 के लिए ऑनलाइन फॉर्म दाखिल करने की अपील। वसीम अहमद खान खाजिन हज सोसाइटी निज़ामाबाद की तला के मुताबिक इस साल आज़मीन की रहनुमाई के लिए शहर में मुख्तलिफ मराकिज़ कायम किए गए हैं, जिसमें तबारक हाई स्कूल, मोहल्ला हताई दफ्तर, सीनियर सिटीजन सोसाइटी अहमदपुरा, नज़ाकत ज्वेलर्स, अहमदी बाजार शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह हज सोसाइटी निज़ामाबाद गुज़िश्ता 25 साल से बिला मुआवजा मुफ्त रहनुमाई का अजीम काम अंजाम देती आ रही है। सन 1996 से हजरत मौलाना सैयद अताउर रहमान साहब अलैहि रहमतुल्लाह की सदारत में काम का आगाज किया। 2005 में मौलाना सैयद वलीउल्लाह काज़मी साहब की सदारत में इस काम को मजीद बेहतर बनाया गया और अब मौलाना इस्माइल आरिफी साहब इमाम व खतीब मोती मस्जिद की सदारत में काम कर रही हैं। वाज़ेह है कि आज़मीन हज की दीनी तरबियत के लिए हर साल 3 प्रोग्राम मुनक़िद किए जाते हैं, जिसमें जदीद तजुर्बेकार उलमा कराम को मदऊ करके मसाइल व तरीक़े हज और अदायगी मनासिक की सिलसिले में मालूमात फराहम की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज से 31 जनवरी 2022 तक रोजाना सुबह 10 बजे
تا شام 4 بجے آن لائن فورم انتقال و دیگر رہنمائی کا کام کیا جا رہا ہے۔ تمامی احباب سے استفادے کی اپیل و خواہش کی جاتی ہے۔ اس موقع پر صدر حج سوسائٹی مولانا اسماعیل عارفی، مولانا عبدالقیوم شاکر القاسمی، معتمد جناب نصیر الدین، خازن وسیم احمد خان، محمد عمران شریف، محمد صدیق و دیگر موجود تھے۔ سارے مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے، 2 سال سے کرونا وبا کی وجہ سے سارے عالم میں جو عازمین حج اور عمرہ ہے ان کے لیے دشواریاں پیش آ رہی تھی۔ الحمدللہ اب اعلان آیا ہے سعودی حکومت کی جانب سے، اس سلسلے میں شہر نظام آباد میں بھی جو حج سوسائٹی نظام آباد میں جو کام ہوتا ہے 5 نومبر سے آن لائن فارم داخل کرنے کا کام چالو ہوا۔ الحمدللہ جو لوگ عازمین حج ہے ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ 5 نومبر سے 31 جنوری تک آن لائن فارم داخل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے تبارک ہائی اسکول حج سوسائٹی نظام آباد جو ہے یہاں پر پہنچ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ حج سوسائٹی ضلع نظام آباد گزشتہ 25 سال سے عازمین حج کی مفت رہنمائی کرتی آ رہی ہے، اور یہ عظیم خدمت استاد الاساتذہ حضرت مولانا سید محمد عطا الرحمن صاحب قاسمی علیہ الرحمہ کی صدارت ہی میں سن 1996 سے ہی عازمین اور عازمات کی رہنمائی کا کام حضرت مولانا کی صدارت میں انجام دیا جاتا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت مولانا سید ولی اللہ قاسمی صاحب علیہ الرحمہ کی صدارت سن 2005 میں مولانا کی صدارت میں یہ کام مزید آگے بڑھا، اور اب موجودہ صدر محترم حضرت مولانا محمد اسماعیل عارفی صاحب امام و خطیب موتی مسجد صدر حج سوسائٹی نظام آباد کی نگرانی میں اور آپ کی سرپرستی میں الحمدللہ انجام دیا جا رہا ہے۔ واضح کر دوں اس بات کو کہ عازمین حج کے فارم داخل کرنے سے لے کر واپس گھر آنے تک جتنے مراحل سے گزرنا ہوتا ہے، خواہ وہ سفر کی مسائل ہوں یا دینی اور شرعی اعتبار سے مسائل سے واقف ہونا ہوں، تمام چیزوں میں عازمین حج کی رہبری کی جاتی ہے اور کی جاتی رہی ہے۔ اور خاص طور پر تربیت کے لیے جو منظم طریقے پر پروگرام بنائے جاتے ہیں، 3 پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں، جس میں اکابر علماء کرام کو اور ایکسپرٹ اور اچھے بہترین تجربہ کار اور ماہر جو 1 سے زائد مرتبہ حج کر کے آ چکے ہیں، ایسے علماء کرام کو مدعو کر کے شہر کے اندر تربیتی اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں، اور ان اجتماعات کے ذریعے سے مکمل طور پر ان کے رہنمائی اور رہبری کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ اب اس سال کے لیے بھی چونکہ حج کمیٹی آف انڈیا سے اعلان آ چکا ہے، اس لیے ہماری حج سوسائٹی ضلع نظام آباد حضرت مولانا اسماعیل عارفی صاحب اور جناب نصیر الدین صاحب، وسیم احمد خان صاحب، ان تمام کی کاوشوں اور کوششوں سے یہ کام کو مزید بہتر طریقے پر انجام دینے کی کوشش اور سعی کی جا رہی ہے، جس کے لیے ہم گزارش کرتے ہیں عازمین اور عازمات سے کہ یہاں تبارک ہائی اسکول میں اور اسی طرح سینئر سٹیزن کے دفتر پر احمد پورہ کالونی میں، اسی طرح وسیم احمد خان نزاکت جویلرز کی دکان پر یہ رہنمائی کے لیے مراکز متعین کیے گئے ہیں۔ آپ یہاں پہنچ کر کے مزید تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں۔ MIM کی بیلوس نڈر حرکیاتی قائد سید خیصر کی بغاوت، کانگریس شمولیت پر شاندار استقبال، مجلس اپنے مقصد سے بھٹک جانے پر دوری۔ آج کانگریس بھون میں پریس میٹنگ کے موقع پر کانگریس سینئر قائد مہیش کمار گوڈ، مانالا موہن ریڈی، طاہر بن ہمدان، کیشو وینو نے سید خیصر کا کانگریس پارٹی میں خیر مقدم کیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے بیلوس سینئر نڈر بے باک حرکیاتی قائد سید خیصر نے بغاوت بلند کرتے ہوئے مجلس سے علیحدگی اختیار کر لی اور کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ جنرل سیکرٹری آل انڈیا کانگریس کمیٹی و MP و انچارج تلنگانہ کانگریس مانیکم ٹائیگر نے سید خیصر کو کانگریس کا کھنڈوا پہناتے ہوئے خیر مقدم کیا
किया और मुबारकबाद पेश की। सैयद खैसर की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत पर तमाम कायदीन व कारकुनान ने खुशी का इजहार किया। सैयद खैसर ने कांग्रेस में शमूलियत पर तमाम आला कायदीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो कांग्रेस पार्टी को अवाम के करीब करने और दोबारा इख्तियार पर लाने के लिए एक सिपाही की तरह खिदमत अंजाम देने तैयार है। इस मौके पर कांग्रेस कायद मोहम्मद जिया अहमद, जावेद अकरम, नागेश रेड्डी, मोहम्मद इरफान अली चेयरमैन जिले माइनॉरिटी सेल डिपार्टमेंट कांग्रेस, अब्दुल इजाज चेयरमैन सिटी माइनॉरिटी सेल कांग्रेस निजामाबाद, मोहम्मद ईसा स्टेट डेलीगेट, मुस्तफा अलकाफ, मोहम्मद वली व दीगर मौजूद थे। మాణిక్యం ఠాగూర్ వచ్చిన రోజున కాంగ్రెస్ పార్టీలో జాయిన్ అయినారు. నిరంతరం ఈ నిజామాబాద్ పట్టణమే కాకుండా నిజామాబాద్ జిల్లాలో పలు సమస్యలపై నిజాయితీగా పోరాడుతున్నటువంటి మిత్రుడు ఖైసర్ కూడా పార్టీలోకి ఆహ్వానిస్తా ఉన్నాం. सीपी कार्तिकेय की हिदायत पर महकमे पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात पर धावा करते हुए जुआ खेलने वाले अफराद को तहवील में लेकर तकरीबन 11,92,620 रकम को किया गया जब्त। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय ने सहाफती बयान में बताया कि दीपावली त्यौहार के पेश नजर इस माह की 2 ता 4 तारीख के दरमियान रात के औकात कार में जुआ खेलने वाले अफराद को तहवील में लेकर 157 केस दर्ज करते हुए तकरीबन 11,92,620 रुपये जब्त किए गए, जिसकी तफसीलात कुछ इस तरह से। निजामाबाद डिवीजन से 256 अफराद को तहवील में लेकर 48 केस दर्ज किए गए, 4,18,360 रुपये जब्त किए गए। आर्मूर डिवीजन से 207 अफराद को तहवील में लेकर 46 केस दर्ज किए गए, 3,24,030 रुपए जब्त किए गए। बोधन डिवीजन से 242 अफराद को तहवील में लेकर 63 केस दर्ज करके 4,50,230 रुपए जब्त किए गए, जिसकी कुल मालियाती रकम 11,92,620 रुपए जब्त करने का इंकशाफ किया। भैंसा शहर में अल्लाह ताला के एक और घर अनफाउल मसाजिद का बरोज इतवार कुशादगी इंशाअल्लाह अमल में आएगी। मुफ्ती मोहम्मद शहबाज कासमी की तला के मुताबिक 7 नवंबर बरोज इतवार को नमाज मगरिब हजरत मौलाना मोहम्मद अब्दुल कवी साहब नाजिम इदारा अशरफुल उलूम हैदराबाद की अमामत में अदा कर इस मस्जिद का इफ्तिताह अमल में लाया जाना तय पाया है। बाद नमाज मगरिब हजरत मौलाना मोहम्मद अब्दुल कवी साहब का खुसूसी खिताब होगा। मुफ्ती मोहम्मद शहबाज कासमी व असातिज़ा अकराम अनफाल मदारिस ने आमतुल मुस्लिमीन से शिरकत व इस्तिफादे की ख्वाहिश जाहिर की है। इंदलवी मंडल के मुकाम पर धरपली ZPTC बाजरेडी जगह ने वंशी मोबाइल पॉइंट व सर्विसिंग सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इंदलवी मंडल के मुकाम पर धरपली ZPTC बाजरेडी जगह ने वंशी मोबाइल पॉइंट सर्विसिंग सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इनके साथ IDCMS चेयरमैन सामवारी मोहन, MPP रमेश नायक, TRS मंडल सदर चेली विराय गंगादास ने शिरकत की। इस प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए ZPTC बाजरेडी जगह ने कहा कि आज के दौर में तमाम तालीम याफ्ता अफराद को गवर्नमेंट मुलाजिमत हासिल करना दुश्वार कुन मसला है, इसीलिए बेरोजगार अफराद तालीम के साथ साथ दीगर वोकेशनल कोर्सेज वो फनी तरबियत हासिल करके खुद के अपने बलबूते पर तिजारत करके अपने अफराद खानदान की किफालत करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MPP रमेश नायक, DCMS चेयरमैन सामबारी मोहन, TRS मंडल सदर CV दास, TRS के जनरल सेक्रेटरी P श्रीनिवास, TRS यू सदर क्रांति कुमार, मौजे के सदर काशीराम, गंगाधर, शॉप मालिकीन गंगाधर व दीगर ने शिरकत की। ఏదో ఒకటి చేయాలనే ఉద్దేశంతో స్వయం ఉపాధిలో భాగంగా తన సొంత డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేసుకొని ఉన్నటువంటి మొబైల్ పాయింట్ ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. చాలా సేల్స్ సర్వీస్ రెండు ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉన్నారు. తప్పకుండా ఇటువంటి యువకులు ఇటువంటి మంచి అంటే స్వయం ఉపాధి కార్యక్రమాలు తీసుకొని ఎవరికి వారు ఉపాధి కల్పించుకొని తనతో పాటు ఇంకో 2-3 ఉపాధి ఇవ్వడం అనేది గొప్ప విషయం. అందరూ కూడా యువకులు మన మండల పరిధిలోని ఇందల్వాయి మండల పరిధిలోని యువకులందరూ కూడా యువకులను ఆదర్శంగా जिले निजामाबाद बालकुंडा अलखे एरगटला मंडल TRS पार्टी सदर A राजा पूर्णानंदम ने पार्टी दफ्तर में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मंजूर करदा CMRF चेक्स की मुस्तहकीन में फराहमी अमल में लाई। जिले निजामाबाद बालकुंडा अलखसमली एरगटला मंडल TRS पार्टी सदर A राजा पूर्णानंदम ने पार्टी दफ्तर में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मंजूर करदा CMRF चेक्स की इस्तिफादा कुननगान में फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद CM KCR की कामयाब तरीन क़यादत में गरीब व मुतवस्सित तबके की फलाह व बहबूद के लिए कई इक़दामात को रूबे अमल में ला रहे हैं, जिनमें एक CM रिलीफ फंड शामिल है। ऐसे अफराद जिनका इलाज खानगी दवाखानों में जारी है और वो
वो कसीर मकदार में रुपयों का बंदोबस्त नहीं कर सकते। ऐसे अफराद को चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से CM रिलीफ फंड से रकम मंजूर की जाती है ताकि इनके इलाज व मुआलजे में काम आ सके। इस मौके पर इस्तिफादा कुननगार ने रियासती वज़ीर आला कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव और रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में MPTC सरपंच, वार्ड के मेंबरान, कायदीन, मौज़े कमेटी के सदर व दीगर ने शिरकत की। आरमूर शहर के दीगर मंडल से मुंसलिक मुख्तलिफ मौज़ूआत में रोशनी का त्यौहार दीपावली का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। आरमूर शहर की दीगर मंडल से मुंसलिक मुख्तलिफ मौज़ूआत में दीपावली त्यौहार का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें शहर में वाक़े दुकानात व मकानात को खूबसूरती के साथ सजाते हुए सापहर लक्ष्मी पूजा अंजाम दी गई और बातज़ात तमाम मुकामी अफराद मुत्तहिद होकर पटाखा जात नजर आतिश करते हुए दीपावली त्यौहार को खुशी के साथ मनाया। इस मौके पर शहर में मौजूद अवाम ने कहा कि गुज़िश्ता साल कोरोना वायरस कहर के बाइस दीपावली त्यौहार को ठीक तरीके से नहीं मनाया गया, लेकिन इस साल कोरोना वायरस की वबा में कमी आने के बाइस हुकूमत की जानिब से फराहम करदा कोविड-19 उसूल और ज़ाबित पर मुकम्मल तौर पर अमलावरी करते हुए दीपावली रोशनी का त्यौहार को खुशी के साथ मनाने का इजहार किया। भैंसा मुस्तक़बिल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नए मुजस्समे की तनसीब। वाज़ेह है कि चंद रोज कबल भैंसा बस स्टैंड चौक पर वाक़ अम्बेडकर मुजस्समे को नुकसान पहुंचाने के बाद शहर के हालात बहुत खराब हो चुके थे। 144 सेक्शन लागू हो चुका था। कई दिनों तक बाजार मुकम्मल बंद था। आहिस्ता आहिस्ता हालात मुकम्मल सुकून में लाने के लिए महकमे पुलिस ने कामयाब मसाई हासिल की। कबल अज़ीम म्यूनसिपल चेयरमैन मोहम्मद जाबिर अहमद ने दलित तबके के जिम्मेदारान से मशावरत करते हुए कामयाब नुमाइंदगी के साथ इन्हें नए मुजस्समे के लिए 5 लाख का चेक बजरिए जिला कलेक्टर दिया गया। आज दीपावली की खुशाइन मौके पर रात 9:30 पर पुलिस और दलित समाज के जिम्मेदारों की निगरानी में नस्ब किया गया। वाज़ेह है कि अभी सिर्फ तनसीब अमल में आई है, मुजस्समे की नकाब कुशाई अभी बाकी है। SC/ST एक्ट केस में समझौता मुमकिन। सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज फहरिस्त ज़ातों और दर्ज फहरिस्त क़बाइल से मुतालिक एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत अज़मी ने कहा कि आला ज़ातों की जानिब से SC और ST के साथ जुल्म एक अफसोसनाक हकीकत है। अदालत ने कहा कि अगर SC/ST एक्ट के तहत मुजरिम ठहराए जाने से पहले मुतासरा और मुलजिम के दरमियान कोई माकूल तस्फिया हो जाता है तो आईनी अदालतें इस केस को मनसूख कर सकती है। एक केस की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत और हेमा कोहली की बेंच ने मुजरिम और शिकायत कुनिंदे की दरमियान तय पाने वाले मुआहदे की बुनियाद पर SC/ST मुजालिम की रोकथाम एक्ट के तहत 1994 की सजा को मनसूख कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक्ट इस मायूस कुन हकीकत का एतराफ है कि कई इक़दाम करने के बावजूद SC/ST आला ज़ातों के हाथों तरह तरह के मजालिम का शिकार हो रहे हैं। SC/ST एक्ट पर अदालत अज़मी की बेंच ने मुशाहिदा किया कि आमतौर पर SC/ST एक्ट जैसे खुसूसी क़वानीन से पैदा होने वाले जराइम से निमटते वक्त अदालत अपने नुक्ते नजर में इंतहाई मोहतात रहेगी। CJI की ज़ेरे क़यादत बेंच ने कहा कि जहां अदालत को यह मालूम होता है कि जुर्म हालांकि SC/ST एक्ट के तहत आता है, बुनियादी तौर पर निजी या शहरी नोयत का है, या जहां जुर्म की जात की बुनियाद पर शिकायत की गई है, या जहां कानूनी कार्रवाई जारी रखना कानून के अमल के गलत इस्तेमाल के मुतरादिफ होगा, अदालत कार्रवाई को मनसूख करने के लिए अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है। सऊदी अरब गैर मुल्कियों के लिए एक और बुरी खबर। सरकारी इदारों में सऊदीयाइजेशन का आगाज, तारिकिन वतन के लिए रोजगार के मौके में कमी। सऊदी अरब में मुलाजमत के मजीद दरवाजे तारिकिन वतन के लिए बंद कर दिए गए हैं। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ममलिकत के 6 सरकारी इदारों में ऑपरेशनल सेक्टर की सऊदीयाइजेशन का आगाज किया गया है, जिसके तहत मज़कूरा सेक्टर में गैर मुल्की काम नहीं करेंगे। रिपोर्ट में बताया गया कि सरकारी इदारों में जरूरत का सामान खरीदने के लिए वर्किंग टीमें तश्कील दी गई हैं। वर्किंग टीमों को टारगेट दिया गया है कि वो मुल्की साख्ता सामान को तरजीह दे, मुकामी सनतों को फरोग देने के लिए इक़दाम करें। सऊदीयाइजेशन के जरिए मुकामियों को मुलाजिमतें दी जाएगी। सऊदी वजीर सनत व मादनियात बनरगुल खरीफ का कहना था कि मुकामी अशिया के इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज करने से तमाम इक़्तिसादी तबकों का फायदा होगा। इन्होंने मज़ीद कहा कि गुज़िश्ता सालों के दौरान इस हवाले से इस्लाहात के मुतअद्दिद शाही फ़रामीन जारी हो चुके हैं, जिनमें कहा गया कि मुकामी साख्ता अशिया को तरजीह दी जाए और कौमी मैशियत में इनका हिस्सा बढ़ाया। आर्मर SHO सैदेश्वर ने दीगर पुलिस मुलाजमीन के हमरा जुआ मराकिज पर धावा करते हुए 108 अफराद को तहवील में लेकर 26 अफराद के खिलाफ केस दर्ज करने का किया इंकशाफ।
आर्मूर SHO सईदेश्वर ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि दीपावली त्यौहार को मद्देनजर रखकर शहर व मौजे के इतराफ एक खुसूसी टीम का क़याम अमल में लाते हुए जुए के मरकज पर धावा करके तकरीबन 1,80,000 रुपए नकद रकम जब्त किए गए। 106 अफराद को तहवील में लेकर 26 अफराद के खिलाफ केस दर्ज करने का इंकशाफ किया। स्पेशल टीम्स ఏర్పాటు చేసి రైడింగ్ చేయడం జరిగింది। దాంట్లో మొత్తం 26 కేసులు నమోదు చేశాం। దాదాపు 100 మందిని అదుపులో తీసుకోవడం జరిగింది। అదేవిధంగా దాదాపు 1,80,000 అమౌంట్ని రికవర్ చేయడం జరిగింది। దానిపై కేసులు నమోదు చేసి కోర్టుకు పంపించి లీగల్ యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది। गुज़िश्ता 7 सालों से बीजेपी हुकूमत पेट्रोल डीजल पर 46% कीमत में इजाफा करके अब दीगर 36 असम्बली मुकामात पर मुनक़िदा इंतखाबात में अवाम की तायद न मिलने पर पेट्रोल पर 5 रुपए व डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम करके PCC सदर महेश कुमार गौड़ ने किया बरहमी का इजहार। निजामाबाद कांग्रेस भवन में PCC सदर महेश कुमार गौड़ ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत ने गुज़िश्ता 7 सालों से पेट्रोल और डीजल पर 46% इजाफा किया और अब दीगर मुल्क में मुनक़िदा 36 असम्बली मुकामात के इंतखाबात में अवाम की जानिब से बीजेपी को तायद न मिलने पर पेट्रोल व डीजल पर 5 रुपए कम करके हद से ज्यादा तशहीर करने का इजहार करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत आम आदमी पर महंगाई का बोझ आयद करके कॉरपोरेट कंपनियों को मजीद दौलतमंद बनाने के लिए मोदी सरकार की कोशिश से अवाम वाकिफ होकर 36 असम्बलियों में मुनक़िदा इंतखाबात में 25 मुकामात पर करारी शिकस्त देने का इंकशाफ किया। 36 అసెంబ్లీ స్థానాలకి ఒక పార్లమెంట్ ఒకటేనా దయాకర్ ఒక పార్లమెంట్ 2 పార్లమెంట్ స్థానాలకి జరిగిన ఎన్నికల్లో బీజేపీని ప్రజలు మట్టి కరిపించిన దరిమిలా దేశ ప్రజలు ఒక సురుకు పెట్టిన దరిమిలా ఇవాళ 10 రూపాయలు 5 రూపాయలు తగ్గిస్తున్నట్టుగా ప్రకటించడమే కాకుండా దాని బాటంగా పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేసుకుంటున్న మోడీ గారికి కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున సూటిగా ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం। తేలు కుట్టినట్టుగా ఎవరికి అంతుపట్టకుండా मरकजी वजारत आयुष की जानिब से मुख्तलिफ जायदादों पर तकर्रुरात। हुकूमत हिंद की वजारत आयुष की जानिब से मुख्तलिफ जायदादों पर कॉन्ट्रैक्ट बुनियाद के तकर्रुरात अमल में लाए जा रहे हैं। जुमला 7 यूनिवर्सिटीज़ में सीनियर प्रोग्राम मैनेजर टेक्निकल की 1 जूनियर प्रोग्राम मैनेजर टेक्निकल की 2 प्रोग्राम मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन 2 डेटा असिस्टेंट की 1 मल्टीटास्किंग सॉफ्ट की 1 जायदाद पर भर्ती की जाएगी। पोस्ट के लिहाज से इंटरमीडिएट मुतालिका सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन MBA PG कामयाब होना जरूरी है। इसके अलावा मुतालिका काम में तजुर्बे के साथ टेक्निकल जानकारी लाजमी है। पोस्ट के लिहाज से उम्मीदवार की उम्र 40 और 50 साल से जायद न हो। पोस्ट के लिहाज से माहाना 16,000 तक 70,000 रुपए तनख्वाह दी जाएगी। दरख्वास्त ऑनलाइन करनी होगी जिसकी आखिरी तारीख 10 नवंबर 2021 मुकर्रर है। वेबसाइट पर मुलाहिजा करें। तेलंगाना में 49,000 मखलूआत जायदादों की निशानदही तकर्रुरात के लिए महकमे फाइनेंस का इत्तेफाक काबीनी मंजूरी के लिए हुकूमत को रिपोर्ट पेश। रियासत में सरकारी मुलाजिमतों की मखलूआत जायदादों की निशानदही का अमल आखिरी मराहिल में पहुंच गया है। मुख्तलिफ महकमे जात की जानिब से हासिल करदा तफसीलात की बुनियाद पर महकमे फाइनेंस ने मखलूआत जायदादों की निशानदही की है। अभी तक रियासत में 49,000 जायदादें मखलूआ होने का इल्म हुआ है। महकमे फाइनेंस ने एक रिपोर्ट तैयार करते हुए काबीनी मंजूरी के लिए हुकूमत को पेश कर दी है। मखलूआत जायदादों की निशानदही के लिए मुतवातिर इजलास मुनक़िद हुए हैं। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, रेसिडेंशियल तकर्रुरात, पुलिस, तिब्बी और पंचायत राज तकर्रुरात और बोर्ड्स के हुदूद में शामिल रहने वाली जायदादों की तादाद की निशानदही की गई है। अजला जोन्स और मल्टी जोन्स जायदादों की निशानदही कर ली गई है। कौन सी जायदाद के जिम्मे में शामिल होगी इसकी वजाहत होने के बाद अहकामात जारी होंगे। वजीर फाइनेंस T हरीश राव ने मुतालिका अहदेदारों का इजलास तलब करके मखलूआ जायदादों की निशानदही और तकर्रुरात के अमल का जायजा लिया। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 33 दिन में 1,000 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 33 दिन के दौरान 1,000 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त हुई है। कोरोना का असर कम होने के बाद आम हालात तेजी से बहाल हो रही हैं। दावतें और तकरीबात भी आम हो गई हैं। लोग जश्न मनाने में बड़े पैमाने पर शराब का इस्तेमाल कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल कोरोना बहरान की वजह से शराब की दुकानात बंद थी और जश्न घरों तक महदूद था। जारिया साल त्यौहार और तकरीबात बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है जिससे महकमे आबकारी को माहाना करोड़ों रुपए की आमदनी हो रही है। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में शामिल अजला हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल में
1 अक्टूबर से 2 नवंबर तक तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त हुई है, जिसमें हैदराबाद में 309 करोड़, मेरचल में 69 करोड़ और जिले रंगारेड्डी में 689.95 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त हुई है। दिवाली से 2 दिन कबल 56 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त हुई है। एक्साइज डिपार्टमेंट के आदाद-ओ-शुमार से इसका पता चला है। दिवाली त्योहार के दौरान जुमला 1200 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। पेट्रोलियम कीमतों पर एक्साइज ड्यूटी में कमी, मरकज के बाद अब वैट में कमी करना रियासती हुकूमत का जिम्मा। मरकजी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज में आला तरतीब 5 और 10 रुपए की कमी के बाद शहर में पेट्रोल की कीमत 108 रुपए 20 पैसे रही, जबकि गुज़िश्ता यौम पेट्रोल की कीमत 114 रुपए 49 पैसे थी। इसी तरह डीजल की कीमत 94 रुपए 62 पैसे रही, जो कल 107 रुपए 40 पैसे थी। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी के बाद शहरियों को तौक़े है कि हुकूमत तेलंगाना भी आसाम, कर्नाटक, गोवा के अलावा दीगर रियासतों की तरह वैट में कमी का फैसला करके अवाम को राहत पहुंचाने आगे आएगी। मरकजी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज टैक्स में कमी के बाद रियासती हुकूमतों से वैट में कमी की अपील की थी, जिस पर बेशतर हुकूमतों ने अवाम को राहत पहुंचाने वैट में कमी लाई है, लेकिन तेलंगाना हुकूमत ने इस तरह का कोई फैसला नहीं किया और न ही इस पर गौर किया जा रहा है। जबकि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से पेट्रोल पर 35% वैट वसूल किया जाता है। हुकूमत से वैट में 10 रुपए की कमी की जाती है तो तेलंगाना में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से कम हो सकती है। रियासत में EWS कोटे के तहत MBBS की 203 नशिस्तें 7 गवर्नमेंट कॉलेजेस में मुख्तस। ऑल इंडिया कोटे में 230 नशिस्तें, हेल्थ यूनिवर्सिटी का ऐलान। रियासत तेलंगाना के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में तिब्बी तालीमी साल 2021-22 के लिए माशी तौर पर पसमानदा तबकात के तलबा के लिए EWS कोटे के तहत 2003 MBBS नशिस्तें मुख्तस की गई हैं। इनमें गांधी और काकतिया मेडिकल कॉलेजेस में 50 नशिस्तें, आदिलाबाद, रिम्स, निजामाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में 20, महबूब नगर और सिद्दीपेट मेडिकल कॉलेजेस में 25 और ESI मेडिकल कॉलेज में 13 नशिस्तें मंजूर की गई हैं। कालूजी नारायण राव हेल्थ यूनिवर्सिटी ने बताया कि इनमें 102 नशिस्तें EWS कोटे के अहल उम्मीदवारों को ही अलॉट की जाएगी। बाकी 101 नशिस्तों में 30 SC, 59 BC और 12 ST तलबा को अलॉट की जाएगी। कालूजी नारायण राव हेल्थ यूनिवर्सिटी ने बताया कि कवायद के मुताबिक EWS कोटे की तमाम नशिस्तें भर्ती की जाएगी। रियासत के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में 1285 नशिस्तें कन्वीनर कोटे में भर्ती होने के बाद इनमें 15% यानी 230 नशिस्तें ऑल इंडिया कोटे में दी जाएगी। इनमें गांधी काकतिया मेडिकल कॉलेजेस में 30, उस्मानिया में 37, रिम्स, आदिलाबाद, निजामाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ESI कॉलेज में 15, महबूब नगर, सिद्दीपेट, नलगुंडा, सूर्यापेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में 22 नशिस्तें मुख्तस की गई। ऑल इंडिया काउंसलिंग के मौके पर ये MBBS नशिस्तें भर्ती की जाएगी। इसके लिए मुल्क भर के तलबा दौड़ में शामिल रहते हैं। दूसरे मरहले में इन नशिस्तों की भर्ती होगी। इसके बावजूद बाकी रह जाने वाली नशिस्तों को रियासत की काउंसलिंग में भर्ती होंगी। 3 दिन कबल नेट के नतायज जारी किए गए हैं, ताहम रियासतों के रैंक हनूज जारी नहीं हुए। बहुत जल्द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की जानिब से रियासत के क्वालिफाई होने वाले तलबा की फहरिस्त जारी की जाएगी। ओहदेदारों ने बताया कि इसके बाद ही रियासती सतह के रैंक वक्फ ट्रिब्यूनल में 18 एकड़ अराजी के हक में फैसला, वक्फ बोर्ड की कामयाबी, कब्जे की बर्खास्तगी के लिए ओहदेदारों को मकतूब। तेलंगाना वक्फ बोर्ड को निर्मल जिले के भैंसा टाउन में एक अहम औकाफी जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ में कामयाबी हासिल हुई है। तेलंगाना वक्फ ट्रिब्यूनल ने 18.22 एकड़ अराजी पर नाजायज कब्जे के खिलाफ अहकाम जारी किए और इसे वक्फ अराजी तस्लीम कर लिया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना वक्फ बोर्ड शाहनवाज कासिम ने रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर भैंसे को मकतूब रवाना करते हुए ट्रिब्यूनल के अहकामात पर अमलावरी और नाजायज कब्जे की बर्खास्तगी की ख्वाहिश की है। मस्जिद मुशाइखीन और दरगाह हज़रत अब्दुल वाहिद गरीब नवाज भैंसा टाउन के तहत मुख्तलिफ सर्वे नंबरात में 318 एकड़ 32 गुंटा अराजी मौजूद है और ये वक्फ नोटिफाइड अराजी है जो AP गेजेट IA मौरखा 4 जनवरी 1990 को दर्ज है। मकतूब में बताया गया है कि एक शख्स ने 18 एकड़ 22 गुंटा अराजी जो सर्वे नंबर 162 के तहत है, इस पर नाजायज कब्जा। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम तरीके पर। आज़मीन हज की खिदमत व सहूलियात के लिए हज सोसाइटी निजामाबाद की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर रहनुमाई मराकिज़ का क़याम, अव्वाम से इस्तिफ़ादे की अपील। सदर हज सोसाइटी मौलाना इस्माइल आरिफी।
दीपावली त्यौहार के मौके पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी व PUC कमेटी चेयरमैन MLA जीवन रेड्डी ने अपने अपने घरों पर अफराद खानदान के हमरा मनाया त्यौहार। कई सालों से तनाज़े का शिकार कबायली अराज़ियात के मसाइल को हल करना ही रियासती वज़ीर आला KCR का मकसद। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी का रेवेन्यू अहदेदारों के साथ मुनक़िदा इजलास से खिताब। CP कार्तिकेया के अहकामात पर महकमे पुलिस की जानिब से जुए की मराकिज़ पर धावा व 705 अफराद पर मुकदमा दर्ज व तकरीबन 11 लाख रुपए रकम की गई जब्त। MSO की बेलूस कारकर्दगी से मुतासिर होकर मौलाना करीमुद्दीन कमाल की जानिब से MSO एक्टिविटी सेंटर के क़याम के लिए दिया अराजी का तिया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।